Hello friends, in this video we'll try to understand the basic rules of solving the rational inequations. Now rational inequations के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले सीख लिया है. We should be comfortable with the idea of interval notations. We'll be using this interval notation in this video and we'll be also using the sign scheme of rational expressions. So ये दोनों चीज़ें हमको आनी चाहिए to understand this video. Now we first start with the basic rules of inequations कि rules क्या क्या होते हैं. तो I am just writing the rules. I am also explaining with the help of examples. Rules of solving inequations. Now the first rule is that if a is greater than b, then this implies a plus c or minus c will be greater than b plus c or b minus c, which means we can add or subtract the same constant on both the sides of an equation. For example, suppose you have x minus 1 is less than 2x minus 3. ठीक है, so what we can do is I can write this as I get this minus 3 on the left and I take this x on the right, जैसे normally equations में करते हैं, and this gives you 3 minus 1 is smaller than 2x minus x, which implies x is greater than 2. ठीक है, x is greater than 2. वैसे मतलब you will get 2 is less than x, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, है ना, बोथ आर करेक्ट. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी की जो चोंच है वो 2 की तरफ रहे. 2 चाहे लेफ्ट पे लिखो चाहे राइट पे लिखो, इनइक्वालिटी की चोंच 2 की तरफ होनी चाहिए. बस ये ध्यान रखना है हमको, है ना. सो ये बिल्कुल देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस रूल, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग अपने इंट्यूशन से भी कर लेते, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल क्लास 9th and 10th ऑल्सो. सो दिस इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस रूल. यहाँ गलती नहीं होगी आपसे, गलती होगी अगले वाले रूल में, जहाँ पे हमको ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा फॉर फ्यू डेज, देन इट बिकम्स अ हैबिट. तो द रूल इज इफ a is greater than b, this does not imply AC is greater than BC, or let's say A upon C is greater than B upon C. ये गलत है. That means इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है 1 upon x let's say is greater than 3. So if I write it as 1 is greater than 3x, मैंने दोनों तरफ क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये जो स्टेप है ये गलत है. मतलब इन केस ऑफ inequations, now the rule is in case of inequalities, we can multiply or divide, we can multiply or divide both sides only by those numbers or expressions which are always positive or which are always negative. So this is the rule that you have to follow for multiplication. यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज पे अगर हम देखें तो पहले एक बार हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा that what is meant by always negative or what is meant by always positive. Let's say I forgot to write this, always positive, है ना. तो what is meant by always negative or always positive, पहले इसका मतलब देखते हैं. Now there are certain values which are without any mathematical doubt positive. जैसे for example 6 is positive, है ना. whatever x is, x कुछ भी हो दुनिया में, 6 हमेशा पॉजिटिव ही होगा. या -5 is always negative. न्यूमेरिकल वैल्यूज कैन इजीली भी इंटरप्रेटेड कि हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव मतलब क्या होता है ये देखते हैं. तो
an algebraic expression or algebraic function is always positive या फिर by the same logic always negative if its sign scheme is, अगर नेगेटिव हो तो साइन स्कीम ऐसी बननी चाहिए, मतलब मैं एक्स को कुछ भी रखूं वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। तो आई एम राइटिंग सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपको बताना है इनमें कौन कौन से एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है। तो लेट्स आई राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन एज x minus x 1 upon x minus 2 x square plus 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मैंने ये बच्चों 5 एक्सप्रेशन लिखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमेशा पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, ये बताना है मुझे। तो सिंपल सा काम है, आप लॉजिकली सोच के देखो, मैं इसमें साइन स्कीम बनाऊँ तो x इक्वल टू 0, दिस इज अ रैशनल फंक्शन है ना, दिस इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, x अपॉन 1 इज अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो इसका साइन स्कीम देखें तो कोई रख के देखते हैं, सपोज इफ आई प्लग इन x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यदि हम x की वैल्यू -1 डाल दें क्योंकि ये ऑड मल्टीप्लिसिटी है 0 पे, तो यहाँ पे साइन चेंज होकर माइनस। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। ये एक्सप्रेशन जो होगा x लेस देन 0 पे नेगेटिव होगा और x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग बिहेवियर है। जैसे अगर हम इसको देखें सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में आप देखोगे दिस इज अगेन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो न्यूमरेटर 0 कहाँ पे होगा, 0 पे। उस 0 के आगे साइन स्कीम अगर हम देखें तो कोई नंबर रख के देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, आप देखोगे साइन स्कीम चेंज हो रही है। तो दिस इज अगेन नॉट एन एक्सप्रेशन जो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो। नेक्स्ट को देखते हैं 1 अपॉन x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2, हॉलो सर्कल डिनोमिनेटर की वजह से 2 से बड़ा 3 रख के देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव टाइप स्टफ। अगले को देखते हैं, इसमें यदि आप देखोगे तो न्यूमरेटर 0 कहाँ पे होगा, कहीं पे नहीं, डिनोमिनेटर 0 कहीं नहीं, तो नंबर लाइन पे कोई नंबर ही नहीं प्लॉट होगा, है ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कब होता है, कभी भी नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 कब आ सकती है, न्यूमरेटर 0 कब हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे देयर इज नो पॉइंट फॉर द न्यूमरेटर एंड सिमिलरली यू डू नॉट हैव एनी पॉइंट फॉर डिनोमिनेटर ऑल्सो। और अब यदि मैं एक्स की जगह कोई वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि अब तो इंटरवल पूरा ही है तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो लेट्स पुट आई पुट एक्स इक्वल टू सपोज -1 डाल देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर इज +1 + 1 इज 2, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो दिस विल बी पॉजिटिव थ्रू आउट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह से यदि हम लास्ट वाले को देखें और नंबर लाइन पर हम इसको प्लॉट करके देखें, तो न्यूमरेटर 0 कहाँ पे होगा, कहीं नहीं, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर इज 1, तो नंबर लाइन पे फिर से कोई पॉइंट नहीं होगा। और अगर मैं x की जगह -1 डाल के देखूँ आपकी बारी, लेट्स से आई पुट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स नेगेटिव, तो इसकी साइन स्कीम ये आ गई नेगेटिव। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो लाइक दिस इज काइंड ऑफ ऑलवेज नेगेटिव। तो इन इक्वेशन का रूल है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स और एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हो जो कि हमेशा पॉजिटिव हों या हमेशा नेगेटिव हों। और इसमें भी एक कंस्ट्रेंट है, एंड दैट कंस्ट्रेंट इज कि यदि हम ऑलवेज नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई both sides of an equation with those numbers or expressions which are always negative, then the sign of an equation must change. Sign of inequality must change. मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो साइन मस्ट चेंज। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेगेटिव से मल्टीप्लाई अलाउड है, लेकिन यू हैव टू चेंज द साइन, साइन चेंज होना है। और यदि कोई एक्सप्रेशन साइन बदलता हो खुद का ही, तो उससे तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं कर सकते,
उसको इतनी इज्जत भी नहीं देनी कि उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएँ। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम नाउ। सपोज आई एम सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, मैं एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स से x-1 अपॉन x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। सपोज मुझे ये सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा पूरा, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपको गेस करना है कि मैं सही कर रहा हूँ, कुछ गलती हुई है, और गलती हुई तो क्या हुई है। सो नाउ आई सेंड दिस 5 ऑन द लेफ्ट and I send this x+3 on the right. So I get this condition, right? So now the question is this step correct or incorrect? So let's analyze this. सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे कैसे। हाउ डू आई अराइव एट दिस स्टेप। वैसे छोटे बच्चों के लैंग्वेज में तो हमने x+3 को वी हैव सेंड दिस x+3 ऑन द राइट, इसको हमने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैथमेटिकली हमने क्या करा, हमने एक्चुअली दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 5 एंड देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स with x+3. Now according to the rule of inequation, रूल के हिसाब से 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इससे ये वाले स्टेप सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ विद x+3। x+3 की साइन स्कीम अगर हम देखें तो ये -3 पे वैल्यू 0 बनती है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो ये स्टेप गलत हो गया आपको। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद x+3, सो दिस इज इनकरेक्ट, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, दिस इज द रूल जहाँ पे थोड़ा सा गलती होती है, हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है इसके अंदर। And also you have to learn this as a result, it's very important. It's a very important result and learn this for some time. बाद में हम देखेंगे इसका प्रूफ या लॉजिक क्या है ना, the reason for this. तो अभी ये ध्यान रखो कि if discriminant is less than 0 then ax square plus bx plus c is either always positive or it is always negative, है ना। एंड रिकॉल दैट डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है क्वाड्रेटिक में b² - 4ac। तो यदि बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो ये गारंटी है कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव हो, a मतलब वो लीडिंग कोफिशिएंट, a की वैल्यू पॉजिटिव हो। और ये ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, यदि a की वैल्यू नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लेते हैं। सो दिस सिंपली मीन्स दैट if I write a quadratic expression, suppose y is equal to x² minus 6x plus 5 and I check its discriminant, the discriminant is b² minus 4ac which is 16. So this means, this implies that x² minus 6x plus 5 will be positive for some values of x, will be positive for some values of x and will be negative for other values of x, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बच्चों पॉजिटिव आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज अटेन कर सकता है। जैसे कि यदि हम दिस थिंग विल बी क्वाइट ऑब्वियस इफ आई राइट दिस एज x minus 1 into x minus 5, think about this, I can factorize this y in this form। और अब हम इसकी यदि साइन स्कीम बनाएं तो द साइन स्कीम लुक्स लाइक दिस 1 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, विद सफिशिएंट प्रैक्टिस आप भी तेज़ कर लोगे।
और आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. इनफैक्ट y will be greater than 0 if x belongs to minus infinity to 1 union 5 to infinity, and y will be less than 0 if x belongs to 1 to 5. तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव वाली सिचुएशन नहीं है. जबकि ऑन द अदर एंड इफ आई टेक एन एक्सप्रेशन लाइक, नाउ सपोज इफ आई टेक एन एक्सप्रेशन लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यदि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac गिव्स यू माइनस 3, एंड दिस वैल्यू इज नॉट नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1 है ना, लीडिंग कोफिशिएंट इज 1. a मतलब क्या होता है, इफ यू कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन यू गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 है ना. इफ आई कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस वन, so the value of a is 1, the leading coefficient is positive, this is a positive value, and discriminant is negative, this value is negative. So जैसा हमने ऊपर देखा था in this table that if d is less than 0, if d is less than 0, then this quadratic expression is always positive if a is greater than 0. तो जब हम इसकी साइन स्कीम बनाएंगे, if I draw the sign scheme of this expression, इसकी साइन स्कीम ऐसी बनेगी, दिस इज पॉजिटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 6. So if I look at the discriminant of this expression, this is b square minus 4ac, which gives you minus 20, and also the value of a is minus 1, so this implies that this expression y is always negative है ना, क्योंकि अब की बार लीडिंग कोफिशिएंट जो है ये नेगेटिव आ गया है, लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो जब हम इसकी साइन स्कीम बनाएंगे तो ये हमेशा नेगेटिव हो गया, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. दिस इज द साइन स्कीम ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये भी याद कर लो, इसको रट लो, और बाद में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. विल स्टडी दिस इन ग्रेट डिटेल इन अ चैप्टर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. लेकिन फिलहाल एक बार रूल्स को समराइज करें तो द रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस आर सिंपल. द फर्स्ट रूल इज एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ से. सो दिस वाज द फर्स्ट रूल. यहाँ पे गलती नहीं होगी, तो ये इजी है. सेकेंड रूल कहता है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कब कर सकते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कब कर सकते हो. तो मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं या तो दोनों तरफ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से या फिर ऑलवेज नेगेटिव नंबर से. और इसमें भी यदि ऑलवेज नेगेटिव से करेंगे तो हमें इन इक्वेशन का साइन रिवर्स करना होगा, इन इक्वेशन का साइन हमें रिवर्स करना होता है. ठीक है, तो नाउ you can probably appreciate these rules using a numerical example. I am just taking a numerical example to illustrate these rules again. So suppose we know that 5 is obviously greater than or equal to 3. We know this. This is correct. Mathematically this is correct. So what happens if I multiply this on both sides with 2? तो since 2 is a positive number, in equation का rule कहता है कि आप इससे multiply कर सकते हो दोनों तरफ. So if I multiply both the sides, the statement will be again mathematically correct. 10 is still greater than equal to 6. लेकिन यदि हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद लेट्स से -2, तो इन इक्वेशन का रूल कहता है कि आप इन इक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन साइन ऑफ इन इक्वेशन मस्ट बी रिवर्स, सो यू गेट -10 इज लेस देन इक्वल टू -6. ऑब्जर्व हियर केयरफुली दैट आई हैव रिवर्स्ड द साइन ऑफ इन इक्वेशन. This sign is flipped. Instead of greater than equal to, we have less than equal to. By the similar argument, suppose if you have 12 is greater than 8. This is mathematically correct. So now you can divide both the sides with 4. You can write this as 3 is greater than 2. I can divide both sides with 4. Divide with 4. This division with 4 is allowed because this is a positive number. Positive number से multiply divide दोनों कर सकते हैं. You can cancel a positive factor on both sides.
ठीक है. इन द सेम वे, सपोज इफ यू हैव -16 is smaller than -12, then we can divide both the sides with -4 also. लेकिन रूल कहता है कि सिंस -4 नेगेटिव नंबर है डिवाइड कर लो, लेकिन साइन रिवर्स करना होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा आपको. तो यदि हम -4 से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 4 is greater than 3. दिस इज वॉट द रूल ऑफ इनइक्वेशन आर. शुरुआत में आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा. यू हैव टू बी केयरफुल इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यहाँ थोड़ी सी गलती होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉशियसली चलेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप गलती नहीं करोगे, आई होप वो गलत नहीं होगा. बस ये ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में चोंच का मुंह किस तरफ रखना है, ये हमको ध्यान रखना है ना. वेदर यू राइट P is greater than Q और you write Q is less than P, it's one and the same thing, both are correct, क्योंकि चोंच का मुंह Q की तरफ ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो बस इसका ध्यान रखना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, डिवीजन विद पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो अलाउड, लेकिन साइन रिवर्स होगा. लेकिन जो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव नहीं है उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है.